Good evening, everyone. So, in the last class, we saw the formation of Indian National Congress, or Indian National Congress was formed by Allen Octavian Hume, that is A.O. Hume, and it was the first session took place. The first session took place in Bombay, but the proposed area was at पुणे, लेकिन वहाँ पे कोलेरा आउटब्रेक हो गया था. That is why Bombay was chosen. And यहाँ पे 28 दिसंबर को हम लोग क्या देखते हैं, that the Indian National Congress has the first meeting, and the president who presided over this meeting was presided by W.C. Banerjee, that is Womesh Chandra Banerjee. And we saw the Septival theory also. It was a theory that the Congress has been formed for conjunction of the shock that will come up as it came out in the revolt of 1857. अगर ऐसा टाइप का कुछ इवेंट होता है तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये जो प्रोटेस्ट है, इसको डायरेक्ट ब्रिटिश को इफेक्ट नहीं होने देने के लिए ये एक सेफ्टी बेल्ट जैसा काम करेगा. तो ये था ये लोग का मानना, एंड इट वाज कॉल्ड द सेफ्टी बेल्ट थ्योरी. बट ऐसा था नहीं, ये जस्ट स्पेकुलेशन था जो सेफ्टी बेल्ट थ्योरी था. एंड हम लोग डिफरेंट जो कांग्रेस का सेशन है, कांग्रेस का सेशन जो इम्पोर्टेंट सेशन क्या क्या था उसको देखिएगा, एंड हु इज द प्रेसिडेंट एट द टाइम. So let's see the important presidents and sessions of INC, Indian National Congress. So it was the first meeting was presided by W.C. Banerjee. इसको याद रखिए. He was the first president of INC. And first women president was or who presided over this session a woman. First woman president who presided over the session of INC was Annie Besant. In the Kolkata session. First Muslim president was Badruddin Tayyabji. Badruddin Tayyabji. In Madras. First English president was George Yule. In Allahabad.
and in the Congress session where Bande Mataram was sung for the first time was 1896. 1896, where the first Bande Mataram was sung for the first time. इन कलकत्ता। पहले प्रेसिडेंट को देख लीजिए, हालांकि यहाँ पे प्रेसिडेंट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। रहीमतुल्ला एम सयानी, and it held in Kolkata. मेरा आवाज आ रहा है सबको? Raise your hand. Okay. The next is the split of extremist and moderate, that is called the Surat split, or it has came multiple times in the last exams. ये बहुत बार आ चुका है ये सूरत स्प्लिट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सूरत स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट इनटू एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। एक्सट्रीम स्प्लिट ऑफ लिखिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स यहाँ पे स्प्लिट हो गया, ये बात नहीं है। वो लोग का विचारधारा पहले से अलग अलग था, तो वहाँ पे एक दरार ज़रूर था, बट यहाँ पे क्या हो गया, देयर वाज एन स्प्लिट इन द कांग्रेस इनटू एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट को हिंदी में बोलते हैं गरम दल, एंड मॉडरेट वेर द नरम दल। The session where Gandhiji was the president, 1924 को है ये, where Gandhi was president, and it was in Belgaum. Now Jawaharlal Nehru, 1929, 9 नहीं है। Jawaharlal Nehru was the president in the Lahore session. और this particular session is important because यहाँ पे पूर्ण स्वराज का पहली बार यहाँ पे पूर्ण स्वराज का बात हुआ था। पूर्ण स्वराज was declared in this time. पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और स्वराज का बात हम लोग का कब शुरू हुआ था, डेट इज आफ्टर द बंगाल पार्टीशन। वो बहुत पहले है, 1905 उसका बाद हुआ था।
तो लेकिन पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये यहाँ पे लाहौर सेशन में ही इसका अनाउंसमेंट हुआ था. एंड in the Purna Swaraj, it was declared that they will carry out this civil disobedience movement until we get independence. And 26 January of 1930 was to be observed as an Independence Day. Subhash Chandra Bose was the president in the Haripura session in 1938. Sorry, it is 38. ठीक है, क्लियर से दिख देगा. It is 38. Subhash Bose in the Haripura session. Then in 1946 was the last session of INC before independence. It was the last session. जो कि मीरठ में हुआ था. एंड फर्स्ट सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस was at जयपुर, और इट was प्रिसाइडेड बाय, इसको भी लिख लीजिए, द प्रेसिडेंट was, और इट was प्रिसाइडेड बाय आचार्य कृपलानी. And first session after independence was at Jaipur, and it was presided by Pattabi Sitaramayya. तो these are some of the important sessions जिसको आप याद रखना है. यहाँ से कुछ भी क्वेश्चंस आ सकता है. तो मल्टीपल टाइम्स ये सूरत स्प्लिट का बारे में आया है कि एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स कौन सा सेशन में ये स्प्लिट हुआ था. तो ये था द सूरत स्प्लिट इन 1907. तो now let's see the era of moderates. तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, तो इट वाज मोस्टली मेड अप ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल, और जब पढ़ा लिखा लोग आता है तो वो लोग एक एक्सट्रीम स्टेप लेना नहीं चाहता है. ये हर जगह अप्लाई होता है. तो जो भी पढ़ा लिखा एक सिविलाइज
एक सिविलाइज सोसाइटी जहाँ पे होगा वहाँ पे हिंसा कम होगा, ये हम लोग हर जगह दिखाई देता है। और लाइकवाइज यहाँ पे भी ये दिखाई देता है, मोस्ट ऑफ देम वेयर the members of the Congress were, most of them were lawyers and अलग अलग जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं ये सब था। तो ये लोग का जो ये था स्टाइल था ऑफ द पॉलिटिक्स, तो ये सिर्फ 3 पीस में बिलीव करता था। ओके, तो इनिशियल स्टेज was mostly it was called era of moderates, and जो 3 पीस का बात कर रहा है, ये लोग का जो अप्रोच था was 3 पीस, means prayer, petition and protest। तो ये था। प्रोटेस्ट भी ऐसा होगा, प्ले कार्ड लेके वो लोग हमारी मांगे पूरी करो, यही चिल्लाएगा। तो ये समय में द period of moderate is considered to be before the partition of Bengal, means जो फॉर्मेशन हुआ 1885 को लेके पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 तक ये लोग का दबदबा रहता है। एंड द मेन लीडर्स ऑफ moderates were the grand old men of India, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, D.E. वाचा, W.C. बनर्जी, ये जो बनर्जी है ये कई जगह पे आपको बनर्जी भी मिलेगा। तो ये जस्ट शायद ये इंग्लिश डॉक्यूमेंट से इंग्लिश लोग का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बनर्जी बोल के, इसमें इसका नाम भी ऐसे रह गया, S.N. बनर्जी। तो ये लोग का जो वे ऑफ प्रोटेस्ट था, इट वाज इन द कन्फाइंस ऑफ द लॉ, मतलब लॉ से बाहर रह के ये लोग कुछ भी काम नहीं करेगा, अंदर से जो भी लॉ है उसको फॉलो करते हुए ये लोग अपना पॉलिटिकल प्रोग्रेस को बढ़ाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल प्रोग्रेस को ऐसे बढ़ाएगा कि वो लोग का बिलीव ये था कि जो ब्रिटिशर्स है, ब्रिटिशर को एक्चुअल कंडीशन पता नहीं इंडिया का, वहाँ का थिंकिंग को पता नहीं है, यहाँ का सोच विचार पता नहीं है, यहाँ का सोसाइटल स्ट्रक्चर को पता नहीं है। तो ये सब कंडीशंस क्या क्या है, ये सब को ये लोग ब्रिटिशर्स लोग का सामने में लेके आएगा, और धीरे धीरे वो लोग जो ब्रिटिशर्स है वो लोग का जो भी पॉलिसीज है एंड लॉज है वहाँ पे इंडियन इंटरेस्ट को धीरे धीरे ये बढ़ाते जाएगा, और पब्लिक में भी ऐसे अवेयरनेस लाएगा। तो ये था ये लोग का बिलीव। दे बिलीव दैट द ब्रिटिशर्स wants to be just
जस्ट मतलब जो जस्टिस करने वाला को जस्ट बोलता है, बट आर नॉट अवेयर ऑफ द रियल कंडीशन ऑफ इंडिया। दिस वर्स दे आर थिंकिंग। और ये लोग अपना जो पॉलिटिकल कैंपेन है ये सबसे पब्लिक ओपिनियन बनाते हुए ब्रिटिश में ये 3 वे को यूज़ करके अपना मतलब जो भी लॉस है वहाँ पे इसको चेंज करेगा। तो देयर मेथड कुड बी, जो ये लोग का मेथोडोलॉजी है, could be seen as create a strong public opinion एंड यही से जो पब्लिक ओपिनियन बनेगा यही से एक कॉन्शियसनेस पैदा होगा और यही कॉन्शियसनेस क्या आएगा, एक नेशनल स्पिरिट आएगा यहाँ से। और जो भी कॉमन पीपल का ये होगा एस्पिरेशंस होगा, ये सबको ब्रिटिश का सामने में लेके आएगा। तो जो ये चीज़ को बिलीव नहीं करता था, जो ये बिलीव करता था कि ये जो मॉडरेट्स कर रहा है ये गलती कर रहा है और इसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए। ये लोग का क्या है, पैसिव रेजिस्टेंस। तो ये एक्सट्रीमिस्ट लोग का थिंकिंग था कि डायरेक्ट यहाँ पे स्वराज का बात होना चाहिए, मीन्स सेल्फ रूल का बात होना चाहिए और डायरेक्ट सिविल डिसोबीडियंस करना चाहिए और जो भी ब्रिटिश लॉ है उसको नहीं मानना चाहिए। अगर ब्रिटिश का कुछ भी इंस्टीट्यूट है, लाइक आप ब्रिटिश कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल्स में पढ़ रहा है, तो वहाँ पे उसको बॉयकॉट करना चाहिए। ब्रिटिश का जो भी चीज़ है उसको बॉयकॉट करना चाहिए। दिस वाज द बिलीव ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट। और ये लोग का जो ये लोग का जो सोच, जो ये लोग का सोच को बढ़ावा मिलता है आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, दैट इज 1905। extremist phase is from 1905, that is partition of Bengal, to 1917। तो इस लोग को बहुत जो ब्रिटिशर्स है ये लोग को हार्शली ट्रीट किया है उस समय में एंड सबको जेल वेल डाल दिया और कोई पॉलिटिक्स से भी इस्तीफ़ा ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया। तो दिस वाज द केस। तो यहाँ का जो मेन लीडर है बाललाल पाल, तो आप जानते होगा, बाल गंगाधर तिलक, लाल फॉर लाला लाजपत राय, एंड पाल फॉर बिपिन चंद्र पाल। तो ये था मेन लीडर। अदर देन दैट राजनारायण बोस, and Aurobindo Ghosh were also of this extremist thinking. Aurobindo Ghosh, and they were dissatisfied with the methods of
with the methods of the extremists. तो ये लोग का जो राइज होता है ये आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वहाँ पे मासेस लोग एक्चुअली क्या हो रहा था, हम लोग पार्टीशन ऑफ द बंगाल जब डिस्कस करेगा उसको डिस्कस कर लेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी द मेथोडोलॉजी। They needed Swaraj. Swaraj is the self-rule. Swaraj to be the goal of national movement. And promotion of Swadeshi. स्वदेशी मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा अपना इंडियंस का थ्रू, एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। and non-cooperation और ये लोग बिलीव करता था that the masses should be incorporated in this political movement। तो पहले क्या था, ये जो एजुकेटेड पीपल्स जो लीडर्स था ये लोग खुद से ही अपना काम करने के लिए कर रहा था, बट इसको नकारते हुए ये लोग क्या सोचता है कि मासेस को इन्वॉल्व करना चाहिए मूवमेंट में। दे बिलीव इन द capacity of masses and believe that masses should be mobilized against the British। तो ये बिलीव था ये लोग का। एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है इन 1905 और 1905 में 16 अक्टूबर 1995 it was done by Lord Curzon। तो यहाँ पे जो बंगाल प्रोविंस था ये एक बड़ा प्रोविंस था उस समय में, जो आज का प्रेजेंट डे बांग्लादेश है वो भी ये बंगाल का पार्ट था, और सम पार्ट ऑफ आसाम वाज आल्सो देयर। तो यहाँ पे बंगाल को दो भाग में मतलब दो भाग में बांट दिया था। पहले बांटने का बात हो रहा था, मतलब ऑब्जेक्टिव था ये कि बंगाल को बांटेगा, तब से प्रोटेस्ट शुरू हो गया था और बाद में इसको बांट भी दिया। पार्टीशन केम इनटू फोर्स इन दिस टाइम, ठीक है। यहाँ पे पार्टीशन हो गया था इस समय में। तो ब्रिटिशर्स बोल रहा था कि ये जो पार्टीशन है, पार्टीशन इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कन्वीनियंस हो सको, इसलिए पार्टीशन कर रहा है। लेकिन ये डिवाइड कम्प्लीटली एक रिलीजियस डिवाइड को लेके था। तो जो वेस्ट बंगाल एंड आसाम का जो एरिया है वो हिंदू डोमिनेटेड है, और जो बांग्लादेश वाला पार्ट है वो मुस्लिम डोमिनेटेड है। तो यहाँ पे इस
बांग्लादेश, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल कर दिया था। तो इसी को लेके यहाँ पे हम लोग को बांटने का कोशिश कर रहा है। तो ये इंडियंस लोग ये बोल रहा था, हालांकि ब्रिटिश का पार्ट से क्या बोल रहा था कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया जा रहा है। तो जो ईस्ट बंगाल था, जो पूरा बंगाल प्रोविंस था, it was divided into East Bengal and West Bengal. And West Bengal was Hindu dominated, or there was majority of Hindu, and it was of Muslim majority. तो इसको प्रोटेस्ट करते हुए जो मॉडरेट का तरफ से यहाँ पे आर्टिकल्स ये सब ये लोग छापा है, न्यूज़पेपर्स निकालता था ये लोग। मॉडरेट्स का जो कैंपेन करने का स्टाइल था, मॉडरेट्स रिएक्शन बोल सकता है, और कैंपेन अगेंस्ट द पार्टीशन। तो यहाँ पे जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, and K.K. Mitra, they published newspaper and they protested through the newspaper. Like newspaper name, ये नेम ऑफ द न्यूज़पेपर वेर, ठीक है। दीज आर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स: बंगाली, हितावादी एंड संजीवनी। This was one of the way, and there was mass petition were signed against this partition. And this was the way of their protest. और यहाँ पे जब ये पार्टीशन हो गया था, पार्टीशन होने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो मासेस है, मासेस भी खुद से प्रोटेस्ट करना शुरू हो गया था। और मासेस को जब प्रोटेस्ट कर रहा था तो एक्सट्रीमिस्ट लोग का ये बोलना था कि अभी मासेस लोग भी सब ये है, मतलब वो लोग भी सब प्रोटेस्ट का मूड में है, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहा है अभी सब लोग। तो हम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है
अभी ये मासेस को लेते हुए हम लोग अपना प्रोटेस्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। तो इट वाज बिलीव्ड बाय द एक्सट्रीमिस्ट। तो और इसको डिनाई कर रहा था जो मॉडरेट था, क्योंकि उसका बाद से यहाँ पे अगस्त डिक्लेरेशन आना बाकी था। तो वो मोर्लेमिंटो आना बाकी था, सॉरी, उससे पहले अगस्त ये मोर्लेमिंटो रिफॉर्म्स आना बाकी था। और मोर्लेमिंटो रिफॉर्म्स में इंडियंस के लिए और वो लोग का लेजिस्लेचर में और जगह होगा, तो ये मानना था फॉर द मॉडरेट। और मॉडरेट लोग अगर यहाँ पे ब्रिटिश का अगेंस्ट ऐसे नारेबाजी करने से वो लोग और इसको कांग्रेस को एक ख़राब दर्जा दे देगा, और वो लोग का मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स में जो रिफॉर्म्स लाना है वो भी नहीं आ पाएगा। तो इट वाज बिलीव बाय द मॉडरेट्स। तो ये जब लागू हुआ है तो जो कॉमन पब्लिक था, कॉमन पब्लिक का अंदर बहुत एक ब्रदरहुड का एक फीलिंग्स था यहाँ पे। देयर वेयर प्रोसेसन्स, ये कॉमन पब्लिक थी है, कॉमन पब्लिक में। एंड प्रोसेसन्स वेयर सिंगिंग वंदे मातरम। और इस समय में जो रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर ही रोट আমার সোনার বাংলা। जो कि प्रेजेंट डे में बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। ये जो बांग्लादेश का प्रेजेंट नेशनल एंथम है। एंड राखीज वेर ऑल्सो टाइड टू ईच अदर। एज a feeling of brotherhood. और इसमें जो एक्सट्रीमिस्ट है ये लोग अपना तरफ से मूवमेंट को चला रहा था इन द डिफरेंट एरियाज। द स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट was led by बॉम्बे में, it was led by बाल गंगाधर तिलक। पंजाब में लाला लाजपत राय। एन अजीत सिंह। और चेन्नई में चेन्नई, या अभी इसको मद्रासी बोल लीजिए, पहले मद्रास था। इट वॉज चिदम्बरम पिल्लई। और बाल गंगाधर तिलक इस समय में ये जो गणपति फेस्टिवल है इसका फर्स्ट टाइम आयोजन करता है, द बाल गंगाधर तिलक।
he organizes गणपति फेस्टिवल, जो हम लोग ये फिल्म्स में देखता है अभी, जो गणपति फेस्टिवल इतना लार्ज स्केल में मनाता है, तो ये बाल गंगाधर तिलक ही उसका स्टार्टिंग किया था ड्यूरिंग दिस टाइम, एज वेल एज द शिवाजी उत्सव। और तो जो मॉडरेट्स का तरफ में इतना सारा प्रेशर आ रहा था वो लोगों, क्योंकि यहाँ पे पूरा पब्लिक एक प्रोटेस्ट का मूड में था, तो ऑब्वियसली अभी लीडर्स को ही पब्लिक का सेंटीमेंट का तरफ नहीं जाएगा, तो वो लोग में और प्रेशर आते रहेगा। तो इसी का चलते जो बनारस सेशन होता है in the next year, बनारस सेशन in 1906, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है, इट वॉज प्रिसाइडेड बाय दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे भी जो एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट का बहुत एक झगड़ा चल रहा होता है, तो दादा भाई नौरोजी एक रेस्पेक्टेड पर्सन था उस समय में, तो जब ये प्रिसाइड करता है तो मतलब दोनों ही मान जाता है इसका, और ये लोग को उपाय नहीं हो गया, ये लोग को जो स्वराज का डिमांड करना पड़ता है, क्योंकि ये पूरा एक मास पब्लिक का ही एक डिमांड रहता है स्वराज जो, तो स्वराज को एक नेशनल गोल मानते हुए यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देता है, ठीक है। बट नॉट द पूर्ण स्वराज, ठीक है। पूर्ण स्वराज हम लोग बाद में देखेगा, यहाँ पे सिर्फ स्वराज का बात कर रहा है, सेल्फ रूल। पूर्ण स्वराज का बात होगा बाद में, जब जवाहरलाल नेहरू उसको अनाउंस करेगा इन द लाहौर सेशन। दिस इज जस्ट स्वराज, नॉट पूर्ण स्वराज। स्वराज दैट इज द सेल्फ गवर्नेंस। तो इंडिया है, हालांकि इसका जो ओवरऑल इसको हेड रहेगा ब्रिटिशर्स, लेकिन इसका रूल क्या होगा, इट विल बी रूल्ड बाय इंडियंस। तो ये था स्वराज का कंसेप्ट, जो स्वराज का कंसेप्ट ये था। तो उस समय में जो ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था, ये सब में भी एक सेल्फ गवर्नमेंट था, और यही चीज़ को यहाँ पे भी अप्लाई करो इन इंडिया ऑल्सो। तो ये डिमांड रखा गया, एंड स्वराज वाज डिक्लेयर्ड दैट स्वराज विल बी द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट वाज डिक्लेयर्ड इन दिस आफ्टर द 1 year ऑफ बंगाल पार्टीशन, ठीक है। And decline of the movement, डिक्लाइन ऑफ द मूवमेंट में हम लोग आवाज आ रहा है?
जो डिक्लाइन ऑफ द मूवमेंट में जो भी लीडर्स था, लीडर्स लोग को यहाँ पे क्रेक डाउन करके, ये इसको हम पूरा मिटा रहे, ठीक है। जितना भी लीडर्स था ये लोग को क्रैक डाउन कर दिया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और सबको जेल में रख दिया एंड दे वेर टॉर्चर्ड इन द जेल, इन द प्रिजन। और इसका बाद से कुछ लीडर्स ने यहाँ पे पॉलिटिक्स से हट गया और कुछ इंडिया छोड़ के चला गया। तो डेट वाज द केस एंड द मोमेंट वाज फिजल्ड आउट, ठीक है। There was ban on public meeting and newspapers। तो ये आज भी इंडिया में हो रहा है। इंडिया सबसे ज़्यादा इंटरनेट बैन करने वाला कंट्री बन गया। And leaders were arrested। Like Bal Gangadhar Tilak, was imprisoned and deported to Mandalay। अरविंदो घोष रिटायर हो गया। फ्रॉम द पॉलिटिक्स लाला लाजपत राय, he went to England and from there to USA। और इस समय में जो मुस्लिम था, द मुस्लिम कम्युनिटी ब्रिटिश को ये लोग सपोर्ट कर रहा था उस समय में। और मुस्लिम कम्युनिटी को ये लग रहा था कि अगर वो लोग ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेगा तो ब्रिटिशर्स खुश होके वो लोग का कम्युनिटी के लिए और फेवरेबल कंडीशंस लेके आएगा। तो ये ब्रिटिशर्स लोग पहले से ये लोग का पॉलिसी ऐसे ही था। तो जहाँ पे जो एक इंस्टेंस है, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था, वहाँ पे जो पार्टिसिपेट किया है वो लोग को आर्मी में बहुत मुश्किल से वो लोग को मौका मिलता था, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टर्म को हम भूल रहे हैं, पर एक टर्म देता था वो एरिया से जो 1857 में पार्टिसिपेट किए और वो लोग को आर्मी में नहीं लेता था। तो ये चीज़ था ब्रिटिशर्स लोग के साथ कि अगर वो लोग का फेवर में कुछ काम कर दो तो वो लोग फेवर रिटर्न करता था। तो ये चीज़ मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे देखा है और ये लोग ब्रिटिशर्स लोग का साथ दे रहा था, जो हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी देखते हैं। एंड फाइनली 1908 तक आते आते द होल मूवमेंट वाज एंडेड, यहाँ पे पूरा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे एक हम लोग राइज ऑफ दिस कांग्रेस दिखाई देता है यहाँ पे, और पार्टिसिपेशन ऑफ द मासेस को भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग लार्ज स्केल में दिखाई देता है इन द बंगाल स्प्लिट और द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो हम लोग दो ग्रुप को देख लिया, फर्स्ट वाज मॉडरेट एंड अदर वाज द एक्सट्रीमिस्ट। एंड आफ्टर दैट
यहाँ पे और एक ग्रुप है जो कि डायरेक्ट बंदूक उठाने में विश्वास करता था. दे वर कॉल्ड एज द मिलिटेंट नेशनलिस्ट और द रिवोल्यूशनरीज मूवमेंट और मिलिटेंट नेशनलिस्ट. तो यहाँ पे जो भगत सिंह इज द राइट एग्जाम्पल टू बी सेट व्हेन वी टॉक अबाउट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट. तो ये जो भगत सिंह टाइप का विचारधारा का जो भी था, दे वर कॉल्ड अ मिलिटेंट नेशनलिस्ट. और ये मिलिटेंट अभी तक इसको हिस्ट्री किताब में अभी तक मिलिटेंट नेशनलिस्ट का नाम से ये लोगों को पुकारा जाता है. तो ये चीज़ को भी जो यहाँ का इंटेलेक्चुअल्स है ऑफ इंडिया, ये चीज़ को हटाने के लिए बार बार कभी कभी डिबेट में सुनाई देता है. तो एनीवेज दे वर कॉल्ड द मिलिटेंट नेशनलिस्ट और द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट और मिलिटेंट नेशनलिस्ट. ये लोग सीधा बंदूक उठाने में विश्वास रखता था. दे वर मोर एक्सट्रीम देन द एक्सट्रीमिस्ट यू कैन से. तो जो फर्स्ट केस है हम लोग का ऐसे एसेसिनेशन करने का ब्रिटिश ऑफिसर्स को, ये फर्स्ट केस हम लोग को दिखाई देता है द चापेकर ब्रदर केस में. तो हम लोग यहाँ पे जितना भी मिलिटेंट नेशनलिस्ट का इंस्टेंसेस है उसको एक बार में देख लेगा, ठीक है. तो हम ऐसा नहीं करेगा कि अभी 1908 है फिर हम दूसरा वाला, मतलब उस समय में साइड में क्या चल रहा था, ऐसा नहीं जाएगा. ये कम्प्लीटली हम एक ही बार में इसको, मतलब एक ही जो नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज मूवमेंट था इसको डायरेक्ट एक ही बार में देख लेगा, ठीक है. सो फर्स्ट केस हम लोग देखते हैं जो रिवोल्यूशनरीज मूवमेंट है इसका चापेकर ब्रदर्स का केस में. जहाँ पे फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एसेसिनेशन हुआ था, ठीक है. इट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल एसेसिनेशन. पॉलिटिकल एसेसिनेशन उसको बोलता है जब एक पॉलिटिकल फिगर को आप मार देता है. लाइक राजीव गांधी वाज ए पॉलिटिकल एसेसिनेशन केस. Political assassination. Of a British officer. After the revolt of 1857. तो ये केस में जो जो इन्वॉल्व था दे वर ऑल ब्रदर्स, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड चापेकर ब्रदर्स. तो सब चापेकर्स था. देयर नेम वर दामोदर, बालकृष्ण एंड वासुदेव चापेकर. And they sought W.C. Rand. हालांकि डायरेक्ट स्पॉट में ही नहीं मर जाता है वो. कुछ दिन का बाद वो बाद में ये ही succumbs to his wounds
and these three brothers are hanged till death. और ये जो रेन था, he was the chairman of chairman of an special plague committee. तो ये तीनों का तीनों दे आर ऑल हैंग टू डेथ. All brothers were hanged. This was the first instance of this political assassination. Next is Alipur bomb conspiracy. Case 1908. It is also called Murari Pukur और मानिकतोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी. यहाँ पे एक्चुअली बॉम्ब फेंकता है और एक मजिस्ट्रेट होता है वहाँ पे, डगलस किंग्सफोर्ड, उसको मारने के लिए बॉम्ब फेंकता है. लेकिन वहाँ पे वो जो कैरियर्स में फेंकता है वहाँ पे वो दूसरा कैरियर्स में होता है. तो जहाँ पे बॉम्ब फेंकता है वहाँ पे दो लेडीज मर जाता है और एक इंडियन भी वहाँ पे मर जाता है. एंड दे आर ट्राइड and hanged after that. Actual target was ALA. Actual target was Douglas Kingsford. He was the chief magistrate of Muzaffarpur. एंड इसको जहाँ पे बॉम्ब फेंकता है वहाँ पे वो नहीं होता है, जो कैरियज में बॉम्ब फेंकता है ये दूसरा कैरियज में होता है. एंड जहाँ पे अटैक करता है वहाँ पे 2 इंग्लिश लेडी आर किल्ड. एंड जो यहाँ पे एक्यूज होता है who threw bomb on this Douglas Kingsford, who tried to kill this Douglas Kingsford was Prafulla Chakri and Khudiram Bose. Who threw bomb was Prafulla Chakri and Khudiram Bose.
एंड चाकरी बाद में जाके वो सुसाइड कर लेता है। एंड ये जो खुदीराम बोस है, ही इज हैंग्ड। और यहाँ पे अरबिंदो घोष को भी ट्रायल के लिए लाता है, बट उसको छोड़ना पड़ता है ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस। अरबिंदो घोष was acquitted, you can write, because of due to lack of evidence. This was the अलीपुर बॉम्ब कंस्पिरेसी। तो कौन सा यहाँ पे कौन सा केस में कौन सा रिवोल्यूशनरी का नाम है, इसको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कर्जन विली एसेसिनेशन, केस लिख सकते हैं आप 1909। तो यहाँ पे एक इंडियन हाउस था लंदन में, एक जगह था जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स लोग जहाँ बहुत आता था। और यहाँ ये इंडियन हाउस को चलाने वाला था जो भिकाजी कामा, एंड there was a house called there was a place called the Indian House, and it was an organization in London run by Indian students। एंड जो पेट्रोन था ये जगह का, दे वेर भिकाजी कामा एंड श्याम कृष्ण वर्मा। एंड वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस इंडियन हाउस, ये बाद में एक आर्मी ऑफिसर का एसिसिनेट कर देता है। तो दिस ऑफिसर वाज हिज नेम वाज कर्जन विली। इन 1909 one of the member whose name was मदन लाल ढींगरा, ये मार देता है इसको कर्जन विली को। एंड दिस लेड टू द डिसबैंड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन को हटाना पड़ता है आफ्टर दिस इंस्टेंस, आफ्टर दिस केस। हावड़ा गैंग केस,
तो यहाँ पे एक डिप्यूटी डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, और ये एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए भी काम करता है. ही वॉज अ पुलिस ऑफिसर, नेमली शमसुद्दीन आलम. शमसुल आलम और जो अनुशीलन समिति था, अनुशीलन समिति अरविंदो घोष का एक ये था, ये एक जिम था अनुशीलन समिति जो. हालांकि ये अनुशीलन समिति जो ये फिटनेस के का एक जिम जैसा एक ये था, ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन यहाँ पे पूरा रिवोल्यूशनरी और का काम ही होता था. तो यहाँ का मेंबर्स जितना था अनुशीलन समिति का, इस लोग का हाथ है यहाँ पे. ये मानते हुए यहाँ का में पूरा अरेस्ट होता है ये अनुशीलन समिति का मेंबर्स लोग को, ठीक है. और दिस शमसुल आलम वाज इन्वेस्टिगेटिंग द revolutionary activities of अनुशीलन समिति. ये अनुशीलन समिति जो एक जस्ट ये फिटनेस ये सब के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन था. ये मतलब क्या बोलेगा आप उसको, जिम जैसा एक, जहाँ पे सब लोग जाके वहाँ पे एक्सरसाइज करता है. तो ये ऐसा टाइप का जगह था, लेकिन वहाँ पे रिवोल्यूशनरीज लोग बहुत सारा आता था. तो लेकिन और इसी को चलते जब इसका मर्डर हो जाता है, शमसुल आलम का मर्डर, ही इज मर्डर्ड, एंड ये मर्डर को लेके यहाँ पे इसका ऊपर जो अनुशीलन समिति का मेंबर्स है, ये लोग का ऊपर ट्रायल चलता है. एंड 47 revolutionaries were arrested. But only जतिंदर मुखर्जी जतिंद्र नाथ मुखर्जी एंड नरेंद्र भट्टाचार्य are just sentenced to 1 year imprisonment. ये लोग को कुछ ये लोग का ऊपर में एक पुख्ता सबूत नहीं मिलता है कि ये लोग इन्वॉल्व था इसमें. This was the Howrah gang case. Delhi Lahore conspiracy case.
1912, the main leader was Ras Bihari Bose. Ras Bihari Bose. और ये समय में क्या हो रहा था, इन 1911 में हम लोग को ये दिखाई देता है कि जो बंगाल से दिल्ली शिफ्ट हो रहा था कैपिटल जो, तो उसी समय में ये हार्डिंग्स था. Harding was the Lord Harding was the he was the viceroy that time. और उस समय में इसका ऊपर में एक बॉम्ब फेंकता है, लेकिन उसको he didn't die that time, and this whole conspiracy was termed as Delhi Lahore conspiracy. The occasion was transfer of capital to Delhi. जो पहले कलकत्ता में था, it was shifted to Delhi in 1911. और इसका कुछ प्रोग्राम चल रहा था, and in that program homemade bomb was thrown into Lord Hardinge. But he didn't die, and he was minorly injured. Kakori conspiracy. तो काकोरी एक जगह है यूपी में, उसमें एक ट्रेन का रॉबरी हुआ था इस समय में. और जो ये था भगत सिंह का जो ग्रुप था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो ये लोग का जो भगत सिंह का ग्रुप था, इसी का पीछे मतलब ये रॉबरी का पीछे ये लोग का ही हाथ था इस समय में. तो इट वाज ए ट्रेन रॉबरी केस. in Kakori in यूपी उस समय में यूनाइटेड प्रोविंस बोलता था इसको, यूपी को. एंड इट वाज द मेन लीडर्स वेर, और इट वाज कैरीड आउट बाय हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन. और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को ही बाद में इसका नाम चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन रख दिया, एसोसिएशन रख दिया. लेटर द नेम वाज चेंज इनटू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन.
और इसमें एक इंडियन आदमी भी मर जाता है ड्यूरिंग दिस रॉबरी, एंड द मेन लीडर्स और द मास्टरमाइंड behind this robbery was Ram Prasad Bismil. चंद्रशेखर आजाद, अफसुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन सिंह, नेक्स्ट इज चिटागोंग आर्मोरी रेड. ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है. दिस हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स. और ये सूर्या सेन था इसका जो मेन लीडर था. आई थिंक इसका पीछे इसमें बेस एक फिल्म भी है शायद, चिटागोंग. इवन दो आई हैवंट सीन दैट मूवी, इसका नाम से एक फिल्म है शायद. तो ये चिटागोंग आर्मोरी रेड जो हुआ था, ये एक यहाँ में एक पुलिस आर्मोरी जहाँ पे आर्म्स रखता है, उसको ये रिवोल्यूशनरीज लोग लूटने का कोशिश किया था. बट वहाँ पे वो लोग कुछ भी आर्मरी नहीं मिला है, और वहाँ पे तोड़ फोड़ करके वापस आ जाता है. ये मतलब जो वायर्स है, टेलीफोन है, ये सब को तोड़ के आ जाता है. तो इट वाज एन अटेम्प्ट मेड बाय द रिवोल्यूशनरीज टू रेड द attempt to raid police armory. और ये कहाँ पे था? चित्तागोंग में. चित्तागोंग शायद अभी इट इज पार्ट ऑफ बांग्लादेश. बट ये लोग को बंदूक नहीं मिलता है. दे वेर नॉट एबल टू फाइंड एनी आर्म्स एंड एम्यूनिशन इन दिस आर्मरी. और able to locate any arms. And they cut the telephone line and telegraph wire. इसको बार बार पूछा गया है पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में. जो सूर्या सेन है, आर्मोरी चित्तागोंग आर्मोरी रेड किसका अंदर में हुआ है, ये आया है बार बार. तो ये सूर्या सेन था इसका मेन लीडर. द सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस.
तो जो सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस है, यहाँ पे भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त यहाँ पे बॉम्ब फेंकता है। एंड बॉम्ब वो लोग किसी को मारने के लिए बॉम्ब नहीं फेंकता है, वो जस्ट जो सोया हुआ है वो लोग जाग जाओ, अभी इंडिया का रिवोल्यूशन आगे बढ़ चुका है, ये मैसेज पहुंचाने के लिए ये लोग बॉम्ब फेंकता है। एंड यहाँ पे बॉम्ब फेंकते हुए जो लीफलेट्स है, जो प्रचार के लिए एक लीफलेट्स होता है, ये सबको ये पूरा फेंकना शुरू कर देता है। तो इट वाज मेनली डन बाय भगत सिंह एंड बाटुकेश्वर दत्त। They threw bomb to draw the attention. With leaflets, जो रिवोल्यूशनरीज आइडियाज था ये लीफलेट्स में लिखा हुआ था, एंड इसको ये फेंकता है। एंड लास्टली लाहौर कंस्पिरेसी केस। तो भगत सिंह जब जेल में होता है तो इसका साथ और एक केस जुड़ जाता है, डेट इज लाहौर कंस्पिरेसी केस, जहाँ पे भगत सिंह ने मर्डर किया था एक ऑफिसर को, और दैट ऑफिसर वाज जेपी सॉन्डर्स। भगत सिंह इट वॉज ट्राइड। उसका बाद भगत सिंह का साथ और सुखदेव राजगुरु भी था। तो भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु ये सबको ट्रायल करता है फॉर द किलिंग ऑफ जेपी सॉन्डर्स, हु वाज एन ब्रिटिश ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु और फॉर द लिंक टू किलिंग ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर नेमली जेपी सॉन्डर्स। और फाइनली they were executed by hanging on 23rd March 1931। तो ये था। और जब ये लोग जेल में होता है, भगत सिंह एंड हिज एक्कम्पनीज, तो ये लोग जब जेल में होता है ये लोग अच्छा खाना और जो पॉलिटिकल ये है प्रिजनर्स है, ये लोग के लिए खाना अच्छा और किताब पढ़ने के लिए और बेसिक एमिनिटीज़ जो देना चाहिए पॉलिटिकल प्रिजनर्स को वो मिलना चाहिए, ये डिमांड करते हुए ये लोग हंगर स्ट्राइक भी
बहुत एक लंबा स्ट्रेच तक हंगर स्ट्राइक भी करता है जेल का अंदर में। तो ये इसको भी आप लोग हालांकि ये एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट नहीं आएगा होगा, बट ऐसे ही आपको याद रखना है। तो ये था हम लोग का 3 डिफरेंट आइडियाज़ इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। वन वाज इन द आईएनसी, और आईएनसी में 2 ग्रुप था, वन वाज मॉडरेट, अदर वाज एक्सट्रीमिस्ट, और एक्सट्रीमिस्ट से भी एक्सट्रीमिस्ट वे द रिवोल्यूशनरीज। और रिवोल्यूशनरीज का आइडिया था कि ये लोग बंदूक उठाना है अपना राइट के लिए, डेट वाज देयर बिलीव। और हम लोग को उसका बाद जब 1905 में हम लोग क्या देखते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल में जैसे हमने बोला था, जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये लोग ब्रिटिशर्स का साइड ले रहा था, और वो लोग अपना ये ब्रिटिशर्स का साइड लेते हुए ये लोग फिर से अपना ही पार्टी खोलता है, दैट इज़ मुस्लिम लीग। और ये फॉर्मेशन इसका होता है इन द ईयर ऑफ 1906, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। और यू कैन से मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। बाद में पहले स्टेज में, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा कि डायरेक्ट एक सेपरेट कंट्री का डिमांड, ये नहीं होता है। तो इनिशियल स्टेज में हम लोग मोहम्मद अली जिन्ना को ये दिखाई देता है कि ही वॉज अ वेरी लिबरल पर्सन। और मेरा हिसाब से जैसे हम सब जिन्ना को नोटिस किया है, तो वो पहले बहुत लिबरल था और कांग्रेस में बहुत एक इंटेलेक्चुअल पर्सन था वो भी। तो आप जिन्ना को अगर ऐसे देखेगा भी तो इवन तो वो मुस्लिम था, तो लेकिन भी वो जो हेम और वाइन उसको बहुत पसंद था। तो इट इज़ सेड दैट, और ही कुड बी सीन वेयरिंग ए सूट ओनली, कभी उसको एक धोती पहनते हुए कभी दिखाई नहीं देगा आप फोटो में। तो ये था, लेकिन वो पहले कांग्रेस में बहुत एक्टिव था। लेकिन बाद में जब गांधी जी आ जाता है, गांधी जी आने के बाद उसका जो एक्टिवनेस है वो ख़त्म हो जाता है, और उसको अपना ये दूसरा का नज़र में आने के लिए शायद वो फिर से एक पॉलिटिकल जो पाकिस्तान का डिमांड है उसको वो और स्ट्रॉन्गली करता है, क्योंकि उसको लगता होगा कि मुस्लिम होने का वजह से इसको हमको ओवरटेक कर दिया, और एक मुस्लिमी एस्पिरेशंस अगर अच्छा से मिलेगा तो वो सिर्फ अपना एक खुद का मुस्लिम नेशन में ही मिल सकता है। तो ये शायद उसका दिमाग में ये आइडिया आ गया। तो यहाँ पे जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग यहाँ पे सिर्फ ये था कि मुस्लिम इंटरेस्ट के लिए ये लोग काम करेगा, और ये चीज़ को मुस्लिम लोग फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स लोग को ये देते हुए सपोर्ट देते हुए इसका फॉर्मेशन किया था। तो इट वाज ये लोग डायरेक्ट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो लोग का पॉलिसीज़ को डायरेक्ट अपोज करता था और ब्रिटिशर्स लोग का साथ देता था। तो एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ this All India Muslim League was Sir Sultan Muhammad Shah,
and also called, he is also known as Aga Khan III. तो ठीक है, आज के लिए यही तक रखते हैं। कल हम लोग सूरत स्प्लिट देखेगा, जब कांग्रेस में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का विभाजन हो गया था, वो दो अलग अलग हो गया था। तो ये हम लोग सूरत स्प्लिट कल देखेगा, ठीक है।